ओके मैं बार बार जा रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं, आई होप कि चल जाए ये 1 घंटे। तो कल हम लोगों ने देखा था द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट what is the basic crux of that judgment, which says that there is a relationship among article 14, 19 and 21, and once through law, the legislature, if the legislature is trying to intervene in any of these fundamental rights, then it should be justified as per the restriction of other related articles also. तो कल हम लोगों ने इस पे लंबा चौड़ा डिस्कशन किया, and simultaneously we have also discussed that how in this case the Supreme Court has held that the term the term procedure established by law should be read as due process of law. So this is something which is very important regarding this particular case, where the Supreme Court has held that the term procedure established by law should be read as due process of law, because now it became mandatory that not only the legislations but the rules and regulations, the procedure, everything should be just, fair and reasonable according to the natural law of justice. तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि what is the basic difference, and for that purpose I have given you one example from Mahabharata and tried to actually differentiate that what is the real difference between the procedure established by law and due process of law. Now the next case, which is prescribed in your syllabus, that is the National Legal Services Authority versus Union of India. The year of the judgment is the year 2014. National Legal Services Authority versus Union of India. Write down the name of this case. इसमें important चीज क्या है? Important चीज ये है कि either somebody is going to fill a form or somebody is going to use a toilet. In every case, the gender is defined in the binary form. The binary form means either male or female. So what is the main issue in this case? In this case, the petitioner has filed this particular petition to recognize persons who fall outside the male or female gender binary, including persons identity identify as third gender. तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि why only male and female? Some space or recognition should be given to the third gender also by law. तो अभी तक जो मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट चल रहा था, इसमें पहली बार ये कहा गया कि थर्ड जेंडर को भी जगह मिले. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि what right we are violating if we are not going to treat them equally. तो एक तो ये हो गया कि थर्ड जेंडर मीन्स it includes eunuchs also. थर्ड जेंडर मीन्स it includes transgenders also. So third gender में इन्होंने बोला कि eunuchs and transgender, they both will be the part of this category. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि what is the petitioner is saying? The petitioner is going to say, sex is something which is purely biological and natural. So if somebody is born in the third gender, then what mistake that particular person has made? So once you read the constitution, firstly article 14 talks about equality, and in under article 15 you will get that there should not be any discrimination on the basis of sex. So what is the main contention of the petitioner? The main contention of the petitioner is because you are not recognizing third gender, so you are creating a discrimination. While article 15 said that they should not be discriminated. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि by not recognizing third gender, you are violating article 14, you are violating article 15, you are violating article 19(1)(a). 19(1)(a) का क्यों इसमें रखा गया है? Because the eunuchs sometimes they have some unique dressing sense, and the way they speak or they talk, that is the uniqueness of their behavior. So what is the main one of the very important contention of the petitioner in this particular case is the way they are expressing themselves, that is a part of their freedom of speech and expression. So on the basis of their way of freedom of speech and expression,
or on the basis of their dressing sense, they should not be discriminated. And if you are going to discriminate them, then again the concept of golden triangle, you are not violating only Article 14, you are not violating only Article 19(1)(a), but you are also violating their right which is available to them under Article 21 in the form of right to life or personal liberty. तो इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि बेसिकली तीन चीजों को या तीन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, 14 को वायलेट किया जा रहा है, 19(1)(a) को वायलेट किया जा रहा है, एंड साइमल्टेनियसली देयर इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑल्सो. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द थर्ड जेंडर और द ट्रांसजेंडर्स they are entitled for protection of Article 14, 15, 16, 19(1)(a) and 21. इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, बिकॉज this is something which is purely natural. So whatever the gender, whatever sex they are belonging, that is something which is very natural. So nobody has right to discriminate with them on the basis of their gender. So if somebody is going to discriminate, then obviously their right which is available to them under Article 14, 15, 16, 19(1)(a) and 21, it is being violated. So the first thing the Supreme Court has held that they are entitled for the protection of Article 14, Article 15, Article 16, Article 19 and Article 21. ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, कोर्ट ऑल्सो रेफर्ड टू कोर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज. ह्यूमन राइट ट्रीटी में याद रखिएगा कि जकार्ता यानी इंडोनेशिया में 2006 में एक ह्यूमन राइट का समिट हुआ था जिसमें एक प्रिंसिपल पास किया गया था, और उस प्रिंसिपल में दे सेड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and there should not be any discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, because they are also human beings, so they also deserve human dignity, which is a very important and integral part of right to life. So the Jakarta principle says that all human beings are born free and equal in dignity and rights. ठीक है ना, तो जकार्ता प्रिंसिपल जो 2006 में डिक्लेयर किया गया था, which talks about the equality and no discrimination among the human beings on the basis of the sexual orientation and gender identity, that has also been accepted by the Supreme Court in this particular case. तो Supreme Court ने बोला आप उनकी जेंडर आइडेंटिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, एंड फॉर दैट पर्पस द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या डायरेक्शन दिया गया है. पहली चीज उन्होंने बोली है, इसलिए अब आपको जगह जगह पे ये चीजें मिलेंगी. द फर्स्ट थिंग इज, स्पेशली जब फॉर्म्स वगैरह होते हैं उसमें कहा गया है गिविंग लीगल रिकॉग्निशन टू थर्ड जेंडर्स इन ऑल डॉक्यूमेंट्स. So for the first time, third gender have been recognized in the form of separate gender. तो पहली चीज क्या कही गई, गिविंग लीगल रिकॉग्निशन टू थर्ड जेंडर इन ऑल डॉक्यूमेंट्स. दूसरी चीज क्या कही गई, रिकॉग्नाइजिंग, दूसरा और इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइजिंग थर्ड जेंडर एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा गया, क्योंकि एक चीज आप याद रखना कि अगर आप इनकी टोटल आबादी देखोगे देन दैट इज समवेयर अराउंड 4 to 5 करोड़ their entire population, but the entire population, such a big population, they are not the part of the mainstream. Because they are not the part of the mainstream. Why they are not the part of mainstream? Because they are discriminated by the society, because society have such kind of mentality. तो ये 4-5 करोड़ की जो आबादी है ना, that is totally unused population. So what Supreme Court has held? The Supreme Court has held that not only the government should recognize them as third gender, but they should also be identified as socially and educationally backward class. And remember, once the Supreme Court has said that they should be recognized as socially and educationally backward class, it means they are entitled for reservation in educational institutions also. तो यहाँ पे एक चीज और बोली है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि these third gender, they should also be identified as socially and educationally backward classes, and they should get the benefit of reservation in educational institution.
और तीसरा इसमें इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली टेकिंग स्टेप्स टू फ्रेम सोशल वेलफेयर स्कीम्स फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी. तो इट्स अ वेरी गुड जजमेंट बिकॉज ऑब्वियसली दीज थर्ड जेंडर्स और द transgenders, they are not respected by the society and still they are not the part of the mainstream, and because of this discrimination they are facing many kind of problem. They are socially backward, they are economically kind of giving a social recognition to these third gender people. So it's a landmark judgment जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि they should be recognized as third gender, should be identified as socially and educationally backward classes, and should also get benefit of reservation in educational institution. And simultaneously the Supreme Court has also instructed central government and the state governments to take steps to frame social welfare scheme for the community. So this was the judgment of the National Legal Services Authority versus Union of India, which is a very landmark judgment and which is a very important judgment. Next judgment, which is prescribed in your syllabus, that is Animal Welfare Board of India versus A. Nagaraj and others. ये भी it's also a very famous case and it is famously known as Jallikattu case. The judgment was pronounced in the year 2014. 2014 में जजमेंट को दिया गया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज एंड अदर्स. ऑल्सो जो मैंने आपको बोला कि ऑल्सो नोन एज जल्लीकट्टू केस, विच इज अ ट्रेडिशनल कल्चरल एंड रिचुअलिस्टिक स्पोर्ट. ये ट्रेडिशनल भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द तमिलियन कल्चर एंड इट इज रिचुअलिस्टिक ऑल्सो. तो इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिसे बुल फाइट या बुल रेस कहते हैं, बुलक कार्ट रेस या बुल फाइट जिसको बोलते हैं, उस तरीके की चीजें जल्लीकट्टू में की जाती हैं. और यहाँ पे कल्चर मनाते हैं कि जो लड़के जो शादी करना चाहते हैं बेसिकली वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. So remember this is the part of their culture also. तो यहाँ पे क्या किया गया, ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला. नोटिफिकेशन किस बेसिस पे निकाला, नोटिफिकेशन इन्होंने इस बेसिस पे निकाला कि इसमें जो बुल फाइट में और बुलक कार्ट रेस में जो बुल्स पार्टिसिपेट करते हैं दे आर बेसिकली इल ट्रीटेड. तो इल ट्रीटेड का मतलब क्या होता है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट क्रूएलिटी टू दीज एनिमल्स, कि आप इनके साथ क्रूएलिटी करते हो. क्रूएलिटी में इन्होंने क्या बोला कि आप उनके अंदर एक गुस्सा आता है एंड दे बिकम वायलेंट एंड बेसिकली दीज केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड अपॉन देम they are in the violation of their right, because remember there is a legislation and the name of the legislation is the Prevention of Cruelty Against Animal Act. और ये जो the Prevention of Cruelty Against Animals Act है, ये recognize करता है animal rights को very much like the Constitution of India which recognizes the human rights or the fundamental rights. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला, नोटिफिकेशन निकाला कि ये जो बुलक, ये जो आपका जल्लीकट्टू होता है, ये जो है दिस इज इन द वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द एनिमल. सो रिमेंबर इन दिस केस to stop this particular practice which is the part of the culture of Tamil Nadu, Animal Welfare Board of India decided to approach to Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन इसमें एक चीज और याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से पहले ये मैटर हाई कोर्ट में आया था, जहां पे डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जल्लीकट्टू इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ तमिलनाडु, सो इट कैन नॉट बी बैंड. सो रिमेंबर, सो ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन the Madras High Court has decided that Jallikattu cannot be banned. So against the order, against the decision of the Madras High Court, this Animal Welfare Board of India, they have approached to Supreme Court to put a blanket ban over this Jallikattu. इसके ऊपर पूरा का पूरा बैन लगाया जाए, इसके लिए जल्लीकट्टू, इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना और सुनने के बाद इन्होंने, देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी. जैसे एक आपका जो मैंने आपको बताया, द प्रिवेंशन अगेंस्ट क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स, ये जो पीसीए एक्ट होता है, इसमें सर्टेन प्रोविजंस हैं जो ये कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्रुएलिटी शुड नॉट बी परफॉर्म्ड अगेंस्ट द एनिमल. तो अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि इन द स्लॉटर हाउसेज
जब स्लॉटरिंग की जाती है देन देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स एंड रूल्स विच शुड बी फॉलोड। जैसे इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होंगे उनकी स्लॉटरिंग नहीं की जा सकती है। जो बच्चे होते हैं नए नए जो पैदा होते हैं, चाहे वो बकरी के हों या जिसके भी हों, उनकी स्लॉटरिंग आप नहीं कर सकते। तीसरा जैसे क्या कहता है कि एक जानवर की अगर आप स्लॉटरिंग करते हो तो उस समय दूसरा जानवर वहां पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और क्यों इन्होंने बातें करी इस प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट में, पीसीए एक्ट में? इन्होंने इसलिए बोला बिकॉज दे ऑल्सो हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ लिविंग बीइंग, और ये माना जाता है कि दे हैव ऑल द राइट्स like the human beings, so their dignity, their life, everything should be protected। तो जब स्लॉटरिंग भी करोगे तो एक डिग्निफाइड तरीके से होनी चाहिए, जिसमें कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को काटना नहीं है। एंड व्हाट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी दैट हैज आल्सो बीन डिफाइंड अंडर दिस पीसीए एक्ट, इसमें इसको भी डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे जब जल्लीकट्टू को इसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड इज this basically this jallikattu, it violates section 3, section 11 1A and section 21 and 22 of PCA Act। ये इतनी सारी चीजों को वायलेट करता है। प्रिवेंशन अगेंस्ट क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल के इतने सारे प्रोविजंस को वायलेट करता है। और साथ ही साथ ये क्या कहता है, लेकिन सपोर्टर्स इसको क्या कह रहे हैं, सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि दिस इज एन अटैक ऑन द कल्चरल एंड ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द तमिलियंस, सो दिस जल्लीकट्टू कैन नॉट बी बैंड। अब इसमें एक चीज बतानी थी कि क्या इस एक्ट से क्योंकि एक चीज में याद रखना, इसके पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा ही एक बुलक कार्ट रेस होती है, एंड दैट वाज बैंड बाय द जुडिशरी ऑन दिस बेसिस बिकॉज द जुडिशरी सेड दैट दिस इज a cruelty against animals, so this practice is in the violation of the rights of the animals, so it should be banned। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के उस बैन का भी जिक्र किया गया है, और तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू को बैन किया जा रहा है उसका भी जिक्र किया जा रहा है। बट रिमेंबर, वंस द कोर्ट has decided to ban this thing, there was a strong resentment among the people of Tamil Nadu। तो पहली चीज तो इसमें ये है कि तमिलनाडु के लोगों के सेंटिमेंट्स को अगर हम किनारे रख दें, then the first and the most important thing is whether it causes cruelty to these animals or to these bullocks who are basically going to participate in the jallikattu। तो इसमें जो petitioner हैं, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने एक डेटा दिया जिसमें इन्होंने बोला कि 43 people have lost their life and basically they irritate bulls and the bulls are beaten, they are subjected to several kind of inhuman activities। So basically all these things are in the violation of article 15(1) article 51 AG की मैं बात कर रही हूँ, it is in the violation of article 51 AG also, and simultaneously this is in the violation of certain provisions of PCA Act also। लेकिन जो इसके सपोर्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि this is the part of the culture and traditional right, and simultaneously article 29 subclause 1 it gives right to every community to protect their culture। तो इन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल 29 gives this right to us that we are allowed to protect our culture because Jallikattu is the part of our cultural right, so if it is going to be banned then in that circumstances our fundamental right which is available to us under article 29 that has been violated। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर किसी कस्टम और किसी के राइट में कोई कंफ्लिक्ट है, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रेफरेंस टू द कस्टम एंड कल्चर, the preference should be given to the rights of the animal। So in this case the Supreme Court has held that animals have been ill treated, so basically this Jallikattu is unconstitutional, this is in the violation of PCA Act and thus it should be banned। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें और उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, इसको भी जरा ध्यान से समझना। पहले क्या किया गया जब जल्लीकट्टू को बैन किया गया था, क्योंकि ये इशू एक बार 2009 में भी आया था, तो 2009 में when the Supreme Court has decided to ban this Jallikattu, the Tamil Nadu government has passed a legislation and they also made certain rules। What is the purpose of that rule and legislation? The purpose of that rule and legislation is the Jallikattu will not be stopped, but this entire practice या जो गेम ये होता है
it should be performed under certain guidelines and in the presence of some official who will take care of this thing, that any cruelty should not be caused to these animals. तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था, तमिलनाडु सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017. एक ये पास किया था, एंड द सेकेंड वाज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स कंडक्ट ऑफ जल्लीकट्टू रूल 20 का, ये इस जजमेंट के आने के बाद पास किया गया. तो पहला इसका मतलब क्या हुआ कि इन द केस ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस एक नागराज का जो जजमेंट है, in this judgment the Supreme Court has agreed that this jallikattu is in the violation of the rights of the animal, and on the basis of that the Supreme Court has decided to ban it. तो बैन करने का उन्होंने रीजन जो दिया वो इन्होंने क्या बताया कि there are 5 freedoms of animals which should be protected at every cost. तो ये जो 5 freedoms सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिकॉग्नाइज करी है वो कौन सी हैं? The first freedom is freedom from hunger and thirst. ये एनिमल्स की फ्रीडम की बात कर रहे हैं, एंड इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर विद द ह्यूमन राइट्स और द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, देन देयर इज अ लॉट्स ऑफ सिमिलरिटी. सो इन दिस जजमेंट रिमेंबर द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड दैट एनिमल्स हैव सेम काइंड्स ऑफ राइट एज ह्यूमन बीइंग्स हैव. तो पहला इन्होंने क्या बोला, जो 5 फ्रीडम्स इन्होंने बताई एनिमल्स की, तो फर्स्ट फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट. सेकेंड फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट. थर्ड फ्रीडम इज freedom from pain, injury and disease. Fourth freedom is freedom for fear and distress. And the fifth freedom is freedom to receive the normal behavior from other and freedom to express normal behavior. तो पांचवी फ्रीडम क्या है? रिसीव करना नॉर्मल बिहेवियर को और फ्रीडम टू एक्सप्रेस द नॉर्मल बिहेवियर. दीज आर द 5 freedoms which have been recognized by the Supreme Court for the animals in this particular केस. अब इसमें क्या मैंने आपको बताया था कि पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो आपको मैंने इस जजमेंट का जिस बताया इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को बैन करने की बात करी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू बैन दिस जल्लीकट्टू, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट अगेंस्ट दिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जब लोग सड़कों पे उतरे, then the Tamil Nadu government has decided to pass a new legislation, and that legislation is an amended legislation. That amended legislation is the prevention of cruelty to animals Tamil Nadu Amendment Act 2017 and prevention of cruelty to animals conduct of Jallikattu Rule 2017. तो 2014 में जल्लीकट्टू बैन होता है, उसके बाद जो है लोगों का विरोध होता है, विरोध होने के बाद ये नए रूल आते हैं. along with the help of these rules the Tamil Nadu government is going to allow Jallikattu. क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा या आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, so the resentment was so strong कि लोगों ने, क्योंकि इसमें पेटा भी आया था सामने, और आपको पता है कि पेटा एनिमल्स राइट की बात करता है. तो व्हाट पेटा इज सेइंग कि दिस जल्लीकट्टू शुड नॉट बी अलाउड एट एनी कॉस्ट बिकॉज इट कॉजेज एनिमल क्रुएलिटी, सो इट शुड बी बैंड इन एवरी सर्कमस्टेंसेस एंड इन एवरी कंडीशन. बट बिकॉज the people of Tamil Nadu, they are very much emotionally attached with their culture, so they are showing their resentment कि नहीं ये होना चाहिए, and under the pressure of the local people, ultimately the government of Tamil Nadu has decided to make this amendment to conduct the Jallikattu, and they have also enacted the rules to conduct the Jallikattu. And what is the basic purpose? The basic purpose is there should be some officer, and in the presence of that officer, this entire Jallikattu thing should be performed so that it could be ensured that no cruelty has been caused against any animal. तो ये जजमेंट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसको तमिलनाडु सरकार ने अलाउ कर दिया. लेकिन इन दोनों के अलावा मे बी हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद दिस जजमेंट? एनी ऑफ यू वांट टू से समथिंग रिगार्डिंग दिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो जल्लीकट्टू में इन्होंने बोला है? ये जजमेंट सुनने में सबको ही ठीक लगता है कि नहीं उनके साथ क्रुएलिटी होती है तो जल्लीकट्टू बैन होना चाहिए. आई थिंक यू ऑल आर एग्री विद दिस थिंग, और एनी ऑफ यू वांट टू से समथिंग? एनीवेज चलो. अच्छा, इसका एक जो देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं. अब जरा इसके दूसरे एंगल को समझना जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हियर.
obviously अगर हम इसको देखते हैं, then it seems that the cruelty is going to be caused against these bullocks, so it should be stopped because they have also a right to life. उनको भी एक right to life है, ठीक है, तो इसको बैन करना चाहिए. लेकिन अब इसका देखो इसका असर क्या होगा. इसका जल्लीकट्टू, जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों का रूरल बैकग्राउंड होगा, हम लोग गांव से आते हैं, हम लोगों ने गांव में देखा है गाय, और यानी अगर आप बच्चियां होती है गाय या बैल जब होते हैं, तो बैल्स जो होते हैं, इसको बुलक्स कहते हैं, दे डोंट हैव एनी यूज इन एग्रीकल्चर दीज डेज. उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है. Why they are not used? Why there is no utility of bullocks? There is no utility of bullocks because everybody is using tractor to plow their agriculture field in comparison to using these bullock carts. तो वो in comparison to using these bullocks, तो वो बैल को यूज नहीं करते, वो ट्रैक्टर को यूज करते हैं. So what is the effect of this thing? The effect of this thing कि अगर मान लीजिए किसी के यहाँ गाय से बच्चा जो होता है वो बछिया न होकर के बैल होता है, then what option is left with them? आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है ना, उसको वो स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं, बिकॉज देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ दिस. इसीलिए गांव में अब लोग बहुत डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो गाय ना पैदा होकर के, यानी बछिया ना पैदा होकर के अगर बैल हो जाएगा तो इसकी हमारे पास इसकी यूटिलिटी क्या रह जाएगी. द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द केस ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो. अब अगर आप स्लॉटर हाउस में इनको बेच रहे हो, तो यहाँ पे सोचने वाली बात होगी कि स्लॉटरिंग इज अ बिगर ऑफेंस और दिस जल्लीकट्टू इज अ बिगर ऑफेंस. तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, जैसे आप लोगों ने एक चीज आजकल देखी होगी कि देसी गाय कोई नहीं पालता. अगर आप देखोगे तो अभी सरकार ने एक योजना शुरू करी जिसको कामधेनु योजना बोलते हैं, क्योंकि अब हर कोई जर्सी गाय की बात करता है. आप लोगों को आइडिया होगा कि जर्सी गाय की जो मिल्क प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन ये क्या है, ये एक हाइब्रिड गाय है. और हाइब्रिड गाय होने के कारण क्या होता है, दिस इज नॉट वेरी सुटेबल इन द इंडियन सर्कमस्टांसेस, क्लाइमेटिक सर्कमस्टांसेस. तो अभी एक, जैसे आप लोगों में से आई एम श्योर कि आप लोग इतना ध्यान नहीं दिए होंगे, इससे कैंसर होता है, जो इसका दूध होता है ना जर्सी गाय का. यहाँ की जो लोकल गाय होती हैं वो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से यूज टू होती हैं. तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है, जो हमारा ट्रैक्टर या टेक्नोलॉजी आई, उससे सबसे बड़ा जो थ्रेट हो गया, वो सबसे बड़ा थ्रेट हो गया राइट टू लाइफ टू दीज एनिमल्स. इनके एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा थ्रेट हो गया. अब कोई इनको पालना नहीं चाहता. गाय में वो गाय पाली जाली प्रेफर की जाती है जो ज्यादा दूध देती है. जल्लीकट्टू में इन बैलों को काटने के लिए नहीं भेजा जाता, सिर्फ इस कारण से कि वो जल्लीकट्टू में पार्टिसिपेट करेंगे. सो रिमेंबर, लोकल ब्रीड्स को अगर आपको जिंदा रखना है तो बुलक्स को आपको या बुल्स को आपको जिंदा रखना पड़ेगा. और बुल्स जो है वो जिंदा रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनकी कोई यूटिलिटी हो. तमिलनाडु इज ऑल्सो अ डेवलप्ड स्टेट. सो इफ द कोर्ट इज गोइंग टू बैन जल्लीकट्टू, देन द लोकल पीपुल हैव नो अदर ऑप्शन but to sell their bulls in the slaughter houses. वो slaughter houses में slaughtering के लिए उनको बेच देंगे. और जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी, उस दिन आपकी जो लोकल रेसेस होती है ना, जो आपकी लोकल ब्रीड होती है, वो पूरे तौर पे उसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाता है. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हमारी जो देसी गाय होती हैं वो कम दूध देती हैं. इसके कारण उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है. लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है, मे बी मेनी ऑफ यू आर नॉट अवेयर दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ काउ यूरिन. आज आप जाकर के चेक करना. और इंपोर्ट कौन करता है? इंपोर्ट करता है अमेरिका. इंपोर्ट किस लिए किया जाता है, इसमें भी आप ध्यान रखना कि जो हमारी लोकल ब्रीड्स की काउ यूरिन होती है, दैट हैज सम कंटेंट टू प्रिवेंट कैंसर. इसीलिए यहां से 35 से 40 रुपए लीटर के हिसाब से काउ यूरिन खरीदी जाती है, और उसको जो है डिसइंफेक्टेंट के रूप में और कैंसर की मेडिसिन के लिए अमेरिका अपने यहाँ इंपोर्ट करता है. हमारे यहाँ पे क्या है, इफ वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दीज लोकल ब्रीड्स, सो देन वी आर गोइंग टू लूज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज रिमेंबर, आप लोगों ने एक क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल चेन का मॉडल पढ़ा होगा, जिस चेन में अगर आप एक भी लिंक को ब्रेक कर देते हो तो पूरी की पूरी चेन या इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है. जैसे अभी आप लोगों ने नील गाय को देखा. नील गाय पहले क्यों नहीं दिखती थी, अब क्यों दिखती हैं? व्हाट इज द रीजन? उसका रीजन ये था कि हमने क्या किया,
जंगलों को खत्म किया, इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स टू यू। जंगलों पे कोई ध्यान नहीं देता। पहले क्या होते थे, गांव में आपके वुल्फ होते थे, जैकॉल होते थे, ये क्या करते थे, नील गाय जब झुंड में चलती थी तो उनके बच्चों पे अटैक करके उनको खा लेते थे। ये जो हमने केमिकल्स मिलाने शुरू किए, उसके कारण ये पॉइजन जो नीचे से ऊपर गया, और जो हमने शिकार इनको मारना शुरू किया, उसके कारण क्या हुआ, ये आपके जो जैकॉल होते हैं खत्म होने लगे। जब ये खत्म होने लगे, नाउ देयर इज नो मैकेनिज्म टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ नीलगाय। इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म में से एक लिंक को हमने तोड़ दिया, और जब हमने उस लिंक को तोड़ा तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या हुआ, द अबंडेंट नंबर ऑफ नीलगाय। तो अब क्या होगा, आप यूपी जैसी जगहों पे देखिए, वो रोज झुंड की झुंड आती हैं और आपके खेत को चढ़ के चली जाती हैं और आप उनको मार नहीं सकते। सो एवरीबडी इज सफरिंग। तो इशू क्या होता है, इंपॉर्टेंट इशू ये होता है कि इस चेन को, या जैसे आप पराली का इशू देखते हो, पराली के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, पहले ये पराली जो है गांव के जानवर खाते थे, तो कभी भी पोल्यूशन की समस्या नहीं होती थी। अब क्या हुआ, हमने जानवरों को पालना छोड़ दिया, इकोसिस्टम में हमने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट किया, इसलिए पराली की समस्या आ रही है। उनको खाने वाले जानवर नहीं तो हम उनको जलाते हैं। यू सी, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डेवलपमेंटल मॉडल विच वी आर फॉलोइंग। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक एंगल तो इसका देखा कि इसको बैन कर देते हैं तो इनके अगेंस्ट में क्रुएलिटी नहीं हो पाएगी, लेकिन द सेकेंड एंगल इज मोर डेंजरस देन दिस एंगल, बिकॉज नाउ देयर इज नो अदर चॉइस बट टू सेल देम इन द स्लॉटर मार्केट फॉर द स्लॉटरिंग। तो स्लॉटरिंग इज द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट फॉर दीज लोकल पीपुल्स। तो आपने क्या किया, आपने छोटे नुकसान को रोकने के लिए आपने एक बड़ा नुकसान किया। एंड वंस यू गो एंड रीड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पढ़ना, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इज स्लॉटर हाउसेस। ये स्लॉटर हाउसेस हैं, एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मीट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो एक्सपोर्टर में क्या होता है, एक्सपोर्टर में कुछ के पास लाइसेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, सम मेनी स्लॉटर हाउसेस आर वर्किंग विदाउट लाइसेंस। इसीलिए आप एक चीज देखोगे कि बीच में एक स्कैम खुला था, आप में से शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। उसमें क्या आइडेंटिफाई किया गया कि दो स्लॉटर हाउसेस विच आर वर्किंग विद लाइसेंस, सो दे आर bound to follow certain rules and regulations because they are working under the authority of the license. But those slaughter houses which are working without license, वो क्या स्लॉटर हाउस में काट रहे हैं पता ही नहीं है। तो अभी बीच में एक आया था कि हम लोग जो मोमोज आप लोग खाते हो, उसमें कुत्ते से लेकर के डेड बॉडी तक की स्लॉटरिंग करते हैं वो, और स्लॉटरिंग करके उसको सेल करते हैं और आपको पता नहीं है कि आप एक्चुअल में क्या खा रहे हो। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ दिस स्लॉटर हाउसेज इज they produce a lots of carbon monoxide and that is extremely dangerous for the environment. इसीलिए the countries like Germany, they are going to put blanket ban on slaughter houses. तो एक तो environment का एंगल है। तो आपने क्या किया, जो हम जजमेंट देते हैं, जब हम सिर्फ एक चीज को देखते हैं, तो एक चीज को बैन करने के कॉन्ट्रास्ट में हम एक बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, हमने एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया है, बिकॉज अब आपको ये नहीं दिखती घोड़ा गाड़ियां जिसको तांगा कहते हैं, क्योंकि घोड़े को अगर आप यूज करते हो तो घोड़े के अगेंस्ट में क्रुएलिटी है। जो जानवर पहले पालतू होकर के पाले जाते थे, क्रुएलिटी के नाम पे हमने उन सबको किनारे कर दिया। तो अब क्या हो गया, उनको कोई पालता नहीं है। अगर ये पलते नहीं है तो फिर ये जाते कहाँ हैं, या तो देयर इज अ थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस नाउ, ये अब होते नहीं है, और अगर होते हैं देन रिमेंबर देयर अल्टीमेट पाथ इज स्लॉटर हाउसेज, देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज स्लॉटर हाउसेज। वो वहां जाएंगे और वहां पे कटेंगे, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग नेक्सस। जैसे अभी आपने बंगाल में देखा होगा, बांग्लादेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ दिस ट्रैफिकिंग ऑफ दीज एनिमल्स। बहुत बड़ा ये मार्केट है, इस पे कभी मैं आपको पूरा एक लेक्चर दूंगी कि कैसे ये मार्केट वर्क करती है। लेकिन हमारी ये जो आपके स्लॉटर हाउसेज हैं, ये अनअकाउंटेड मनी को क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और अगर मनी के एंगल को छोड़ भी दिया जाए, देन दीज स्लॉटर हाउसेज
they are causing more damage to the life of the animals, और इनकी जो लाइफ पे थ्रेट आता है उसके कारण the entire ecological system is going to be disbalanced. So that is a very important thing. So once the Supreme Court has decided to put blanket ban on Jallikattu, इन्होंने सारी probability खत्म कर दी कि अब local species जो वहां की वो survive करेगी, लोकल ब्रीड वहां की सर्वाइव करेगी. इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. एंड दैट्स व्हाई लोगों का तो खैर ये एंगल नहीं था. द एंगल वाज द सेंटिमेंटल एंगल वेयर दे वर स्टार्टेड अपोजिंग द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. एंड अल्टीमेटली to give respect to the tradition and the culture of the local people, the Tamil Nadu government has firstly decided to issue an ordinance, and subsequently they have introduced a new amended legislation along with the rules to keep continuing this Jallikattu festival. So this was the judgment of Animal Welfare Board versus Board of India versus A. Nagaraj and others. ये दूसरा केस था. तो इसमें मैंने इसको आपका क्रिटिसिज्म भी बता दिया. इसमें बेटर होता कि सुप्रीम कोर्ट इसको ब्लैंकेट बैन करने के बजाय इसके लिए कोई रेगुलेशन डेवलप करता कि ये होना चाहिए लेकिन एनिमल्स पे क्रुएलिटी ना हो, उसका ध्यान रखने के लिए ये मैकेनिज्म डेवलप किया जाए. सो पुटिंग अ ब्लैंकेट बैन. और इसमें भी आप ये देखना कि जो पेटा टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके भी इंटेंशन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी स्लॉटर हाउसेस को बैन करने के बाद क्यों नहीं करते हैं. If they are so much concerned about the animal right, no, they will pick and choose certain special things. वो कुछ खास चीजों पे टारगेट करते हैं और आप जा करके अब इनको जो मैंने आपको बताया आप इसको देखना, because they have sometimes some other agenda also which basically they are working. और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा होता है कि लोकल कल्चर को और लोकल लोगों को नुकसान पहुंचाना. Maybe you few of agree with me, maybe few of you are not agree, but actually it is a reality. And इसी को बताने के लिए further to prove it, I am just going to discuss another case. The name of the case is Navtej Singh Johar versus Union of India. This is also famously known as 377 case, section 377 of IPC. Navtej Singh Johar versus Union of India. लेकिन इस पर मूव करने से पहले, because this is a very lengthy case, if you have any question, then firstly I will take this question answer round. तो अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज आप. नवतेज सिंह जौहर के मैं आपको एक नया एंगल बताऊंगी जो शायद आपने सुना नहीं होगा, बट आई विल डिस्कस इट. और अगर आज नहीं हो पाएगा क्योंकि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, देन आई विल टेक अप दिस पर्टिकुलर केस टुमारो. बट फॉर टुडे these two cases which we have discussed, National Legal Services Authority versus Union of India and Animal Welfare Board of India versus A. Nagaraj, इन दोनों cases में if you want to ask something to me then please ask. तो फिर कल हम लोग फिर आगे नवतेज सिंह जौहर का केस देखेंगे. Any question from any of you? मैम मैम ये जो लीगल केस वाला था इसमें जो गाइडलाइंस दी थी, तो मैम रिजर्वेशन तो मेरे हिसाब से जहाँ तक नॉलेज है नहीं दी गई है ट्रांसजेंडर को. इसको चेक करना पड़ेगा. इन्होंने तो बोला है देना चाहिए, पर दी है कि नहीं है. मेरे ख्याल से दी होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने भी ध्यान दिया नहीं, पर हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला जरूर है कि इसमें इनको रिजर्वेशन दिया जाए. तो रिजर्वेशन में याद रखना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात होती है. इसका क्या मतलब होता है मैं तुम लोग को तब बताऊंगी जब मैं तुम लोग को रिजर्वेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है ना. तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनको दिया जाएगा, वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा. कि वर्टिकल दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल दिया जाएगा, इसको हम लोग रिजर्वेशन में डिस्कस करेंगे. बट बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड देन आइडली दे डिजर्व, but I need to check it because even I haven't seen that during this admission process in DU whether we given them reservation or not. तो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा. बट हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जरूर बोला है कि they should be treated as socially and educationally backward and they are entitled for reservation in educational institution. So I'll check it and then I'll get back to you tomorrow. ठीक है? Okay, ma'am. Any other question? Ma'am, if animals have right to life, then why they are cut in slaughterhouses? वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है. एक तरफ आप कह रहे हो कि एक बुल को जो है रेस में दौड़ाना ये क्रुएलिटी है, तो स्लॉटर हाउस में उसको काटना क्रुएलिटी कैसे नहीं हो? तो सबसे बड़ी क्रुएलिटी है. तो ये जो पेटा वेटा होते हैं ना, वो अभी इन लोगों ने देखा होगा, आपने एक नया इशू उठाया केरला के मंदिरों में जो हाथियों की पूजा की जाती है, इन्होंने बोला हाथियों को बैन किया जाए. और वहां पे अगर हाथी बैन हो गए तो इसका मतलब क्या है? आपके पास सिर्फ एक चारा बचेगा कि आप उनको मार दो. तो अल्टीमेटली यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग देम, यू आर डिस्ट्रॉइंग देम.
बट इट हैपेंस, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया ना, अगर ये जल्लीकट्टू बैन हो जाता हो, तो तमिलनाडु सरकार ने इसको चेंज कर दिया, अगर ये बैन हो जाता तो लोकल लोग अपने बुल्स को स्लॉटर हाउसेस में बेचते, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। एंड दिस इज हैपनिंग इन एवरी विलेज इन इंडिया दीज डेज। जब से आपका ट्रैक्टर आया है, जितने बुल्स होते हैं सबको स्लॉटर हाउसेस में, जैसे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं उनको बेच दिया जाता है। सो इट्स अ बिग बिजनेस, इट्स अ बिग मार्केट। इसीलिए बीच में 2015-16 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया लेजिस्लेशन लेकर के आई थी, जिसमें उन्होंने स्पेशली ये बोला था कि आप अपने जानवरों को स्लॉटरिंग के लिए नहीं बेच सकते हो। स्लॉटरिंग के लिए अगर आपको बेचना होगा तो उसके, क्योंकि वहां पे एक बड़ा नेक्सस, वहां पे क्या आते हैं, जो स्लॉटरिंग के बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो इन कैटल मार्केट्स में आते हैं। और कैटल मार्केट आप लोगों ने देखी होगी, वहां पे जानवर बेचे और खरीदे जाते हैं। मान लो एक किसान है, उसको कोई बैलों की जोड़ी चाहिए अपने लिए, तो खरीदेगा। तो वहां पे ये जो आपके स्लॉटर हाउसेस का एक पूरा का पूरा नेक्सस चलता है। और ये क्या करते हैं, ये किसानों से औने पौने दामों पे ये जानवर खरीदते हैं, और खरीद के इनको स्लॉटर हाउसेस में बेचा जाता है, और उसके बाद काट करके इनको जब बेचते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री, और इसमें इलीगल तरीके बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपने जानवरों की चोरी का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, चोरी का भी एक बहुत बड़ा एंगल है। तो मैं जो आपको ये बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए ये चीज बता रही हूँ कि हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हम जजमेंट देते हैं तो एक एंगल जो उसको उठाया जाता है उसको देखने के अलावा हमें बाकी सारे एंगल्स भी देखने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंगल को मिस किया है कि अगर जल्लीकट्टू को हम बैन कर देंगे तो ये बुल्स कहाँ जाएंगे, बिकॉज द फार्मर्स आर नॉट गोइंग टू कीप देम, देन व्हाट वुड बी देयर फ्यूचर। किसान इनको सिर्फ इसलिए अपने घर में रखता है तमिलनाडु और महाराष्ट्र में क्योंकि ये इन फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं, इनके ऊपर प्राइज होता है और उसमें जीतना वो एक प्रेस्टीज का इशू मानते हैं। जिस दिन आपने इन फेस्टिवल्स को बंद कर दिया, the only place left for them is slaughterhouses, which is a much bigger cruelty to these animals instead of this banning this jallikattu and other same kind of festivals. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब योगी सरकार आई थी तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि हम यहाँ पे गैर लाइसेंसी स्लॉटर हाउसेस को बंद करेंगे, और उसमें काउ स्लॉटर, जो बहुत ही डिबेटेबल इशू इंडिया में रहता है, उस पर बात की गई थी कि काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए। उस समय कोर्ट ने एक बात बोली थी कि राइट टू चॉइस ऑफ माई फूड इज माई फंडामेंटल राइट। और बीच में आप लोगों ने देखा होगा इस पे काफी डिबेट हुआ था, काफी डिस्कशन हुआ था, और बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस चीज की डिमांड की गई थी कि हमें यहाँ पे इस चीज का मार्क्स दिया जाए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो एक बड़ा डिबेट था कि राइट टू चॉइस ऑफ माई फूड, वेदर इट इज माई फंडामेंटल राइट और नॉट। बट रिमेंबर आफ्टर दिस कोरोना वायरस नाउ इट इज वेरी मच क्लियर दैट राइट टू चॉइस ऑफ योर फूड can be your fundamental right only in that circumstances when it is allowed according to other social and scientific parameters, otherwise it should not be allowed। क्योंकि वहां पे अभी भी ये क्लियर नहीं है कि वो कैसे फैला था। पेंगुलिन को खाने से फैला था, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ कहते हैं चमगादड़ को खाने से फैला था। तो एक बात आप लोग याद रखो कि इंडिया को ये लोग बहुत पिछड़ा मानते हैं। इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि इस तरीके की चीजों को, हिरन के मांस से लेकर के, जो सबसे बैकवर्ड मानी जाती हैं, हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में आज तक खाने के कारण एक भी बीमारी नहीं फैली है। इसका मतलब इवन आवर ट्राइबल कम्युनिटीज आर मच मच मोर एडवांस knowledge wise, they know that what to eat and what not to eat, but these developed countries even they don't know that what should eat and what should not be eaten. So what is the issue after this coronavirus? It became very important. The right to choice of your food is definitely not your fundamental right if it is going to cause any kind of harm to your body or to the life of the other persons. तो ये एक बड़ा डिबेट था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, राइट टू फूड ऑफ योर चॉइस इज योर फंडामेंटल राइट, तो आप बैन नहीं कर सकते हो। तो क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के भी स्टैंडर्ड्स अलग अलग केसेस में अलग अलग है। देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, द प्रॉब्लम इज इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किस चीज को लेकर के, आप कहाँ पे कब बोलने वाले हो, क्या बोलने वाले हो। बुलक कार्ट्स में जो जल्लीकट्टू है ये क्रुएलिटी टू एनिमल है, बट स्लॉटरिंग इज नॉट क्रुएलिटी। So basically, what basically you want to say? There should be some clarity. But as per my understanding, these things create more confusion. और मैंने आपको बताया कि ये जो इस तरीके के जो कल्चरल चीजों पे जो बैन लगता है, जैसे अभी हाथियों पे बैन की बात केरला में की जा रही है, जहाँ पे मंदिर, आप लोग केरला में गए होंगे
तो आपने देखा होगा केरला में हाथी हर मंदिर में रखे जाते हैं। आपने बोलते हो कि आप मंदिरों में रख करके उनके साथ टॉर्चर करते हो। मंदिरों में उनके साथ पहली बात क्या टॉर्चर होता है, पहली बात ये बताओ। और दूसरी बात, अगर आपने उनको वहां से हटा दिया तो मारे जाएंगे। अभी आपने देखा कि वो अनानास में उसको पटाखा बढ़ा के खिला दिया गया था। अभी वो पाले जाते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, तो वो जिंदा है। कल को अगर आप उनको छोड़ दोगे तो वो ह्यूमन हैबिटेशन में एंटर करेंगे और बस्तियां की बस्तियां तबाह करेंगे। देन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस? But such type of petitions are filed and unfortunately they are also entertained. So once the matter is going to be decided, it should be taken care by the Supreme Court after going through all the possible angles. Otherwise, the result can be extremely disastrous. So that was all about today's class. What I wanted to tell you. और इसमें अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप ये भी पूछ सकते हो। अगर है कोई सवाल आपका? पिछले क्लास से रिलेटेड सवाल। हाँ बताओ। To my मैम के अगेंस्ट मैम हमारी आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज नहीं आ रही, शायद तुम कहीं बाहर हो। विकास आप बोल रहे थे या गौरव बोल रहे थे? नहीं राइल, इसकी आवाज नहीं आ रही है, ये कहीं बाहर है। माइक ऑन था, एक विकास था। मैम अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, तुम लोग सुनो मेरी बात। कल मैं नौतेज सिंह जौहर का केस तुम लोग को पढ़ाऊंगी और मैं कल इस जजमेंट के कुछ ऐसे एंगल बताऊंगी जो आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। तो कल प्लीज तुम लोग मेरे साथ जरूर इस क्लास में रहना और तुम्हारे आज के जो सवाल हैं वो प्लस कल के जो सवाल होंगे वो मैं कल लूंगी और कल का ये इंपॉर्टेंट केस हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं तुमको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जाता है नौतेज सिंह जौहर के केस में। तो कल मैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को बताने वाली हूँ। सो प्लीज बी विद मी टुमारो। आई विल शेयर द लिंक बट आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज द क्लास फॉर टुडे बिकॉज समवन इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। तो मुझे अब इसको खत्म भी करना पड़ेगा और आज के लिए काफी हो गया है। तीसरा केस वैसे भी नहीं हो पाएगा। सो वी आर गोइंग टू मीट टुमारो एट 6 PM, राइट? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग की क्या कल दिन में क्लास खाली है क्या? क्या बोले मैम? दिन में सुबह खाली हो गया तुम लोग की क्लास? तुम लोग की एक सेकंड देखते हैं फ्राइडे का। यही टाइमिंग ठीक है मैम, और बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं मैम। यही टाइमिंग ठीक है। शाम को हम फ्री होते हैं एक्चुअली, मॉर्निंग में नहीं होते इतने ज्यादा। तो ठीक है बेटा, कल 6 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है ना? मैम तुम लोग इसको जो मैंने तुम लोग को बताया, तुम लोग इस एंगल पे भी थोड़ा सा पढ़ना ताकि तुम लोगों को भी समझ में आ सके कि किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। और कल हम लोग देखेंगे नौतेज सिंह जौहर का केस, ठीक है? तो सी यू टुमारो। मैम कल सुबह 9:30 ले सकते हो आप? नहीं बेटा 9:30 तक तो एक बजे तक तो, एक क्या 12 तक मैं खाली नहीं रहती, 12-1 बजे तक इसी टाइम पे लेते हैं 3:30 ठीक को है? ले सकते हैं मैम और उसके बाद फिर नहीं 6 बजे करते हैं, 6 बजे करते हैं, ठीक है? ओके, मैम बाय बाय बाय। थैंक यू मैम।